In this part of the unit, magnetic effect of electric current and magnetism, you will learn about Lorentz force. A Dutch physicist, H. A. Lorentz, on the basis of his experiments, propounded a relation for the force acting on a charged particle Q moving with velocity v in a magnetic field B. This force acting is Fm is equal to Q times V cross B, where B is directed vertically downwards and is normal to the direction of motion of this charged particle Q. The magnitude of the force acting on this charged particle is given by Fm is equal to QVB sin theta, where theta is equal to 90 degree. In this case, theta is 90 degree. So F is equal to QBV. This is maximum value of the force. अब हम ऐसा केस लेते हैं जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है बट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी. इस v को दो कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं. v sin थीटा इज नॉर्मल कंपोनेंट विच विल गिव इट rotational motion, and v cos theta is component of velocity along the direction of magnetic field which will give it translational motion. Because of these two components, the path of this charged particle will be helical, means translational plus rotational. Let us understand the concept of this magnetic force acting on the charged particle moving in uniform magnetic field once again. So the force acting on the charged particle Q moving with velocity v in magnetic field B will be Fm is equal to Q times V cross B. इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा Fm is equal to QVB sin theta. Now the direction of force acting on negative and positive charges will be different. That concept we will learn a little later. सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को समझते हैं जिन पर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है. So Lorentz force depends upon following factors. What are these? Number first is velocity of the charged particle. F is equal to QVB sin theta में अगर हम V is equal to 0 रखते हैं तो क्या होगा? V is equal to 0 रखने पर F जो लॉरेंज फोर्स है that will be equal to 0. That means force is not experienced by a stationary charged particle. दूसरा फैक्टर है लॉरेंज फोर्स will be 0 when theta is equal to 0 और 180 डिग्री. दोनों केसेस में साइन की वैल्यू 0 होती है. तीसरा आउटकम है कि लॉरेंज फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा. थीटा इज इक्वल टू 90 degree, and what will be the maximum value of force? That is F is equal to QBV. इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. अब इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के कंसेप्ट को समझते हैं. द राइट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on the charged particle which moves in magnetic field. This rule gives the direction of magnetic force. ये right hand rule क्या है? As per right hand rule, if for any positive charge the fingers of your right hand curl from the velocity vector to magnetic field vector, then the direction of the thumb will show the direction of the force acting on the charged particle. नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन अलग होगी और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी. इसको और डिटेल में समझने के लिए इस डायग्राम पर आप आइए. इन दिस डायग्राम द फिंगर्स आर बीइंग कर्ल्ड फ्रॉम V टू B, वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की ओर. ये पॉजिटिव चार्ज का केस है. सो थंब विल बी शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी.
माइनस क्यू चार्ज के लिए हम v वेक्टर ना लेके उसका माइनस v वेक्टर, इसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे. देन वी विल कर्ल आवर फिंगर्स फ्रॉम माइनस v टू b. तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी जो माइनस क्यू चार्ज पर लग रहा है. अब मैग्नेटिक फील्ड को लॉरेंज फोर्स के टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो यूनिट होती है टेस्ला, 1 टेस्ला को भी डिफाइन करेंगे. सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मैग्नेट within which its influence can be felt by the magnetic needle is called its magnetic field. The strength of magnetic field is measured in terms of magnetic flux density or magnetic induction. It is denoted by B. A magnetic field is represented by magnetic field lines, just like electric field is represented by इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड किससे दिखाया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट क्या शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो एफ एम इज इक्वल टू कितना है? क्यू वी बी साइन थीटा. यहाँ से अगर आप बी निकालें तो क्या मिलेगा? बी इज इक्वल टू एफ एम बाई क्यू वी साइन थीटा. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकेंड. कूलम पर सेकेंड एम्पियर है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. इफ थीटा इज 90 डिग्री, v is 1 meter per second, q is 1 coulomb, f is equal to 1 newton. Then from the relation b is equal to fm by qv sin theta, we will get b is equal to 1 Tesla. Tesla is the unit of magnetic flux density. So magnetic field is said to be 1 Tesla when a particle of 1 coulomb moves with a velocity of 1 meter per second at right angles to the magnetic field, which experiences a force of 1 Newton. So what is the condition? कंडीशन ये है कि V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और V 1 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए और जो चार्ज्ड पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है वो कितना होना चाहिए? 1 न्यूटन होना चाहिए. तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है दैट विल बी 1 टेस्ला. टेस्ला इज़ वेरी लार्ज यूनिट. तो इन जनरल हम छोटी यूनिट्स को यूज़ करते हैं. जो इसकी CGS सिस्टम की यूनिट है दैट इज़ गॉस. 1 गॉस इज इक्वल टू हाउ मच? 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला. जी से गॉस को रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इन्फ्लुएंस में है तो उस केस में जो लॉरेंज फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe प्लस मैग्नेटिक फोर्स Fm. इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स प्लस मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स F कितना होगा? इज इक्वल टू QE प्लस Q टाइम्स V क्रॉस B. Q कॉमन ले लीजिए, Q टाइम्स E प्लस V क्रॉस B. This is the Lorentz force. If the charged particle is undergoing circular motion in uniform magnetic field, that means some source is providing centripetal force to the charged particle. कोई m मास का चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी होता है वो कितना होता है? जब r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है तो mv²/r दैट इज इक्वल टू bqv. व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स bqv इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ से इस रिलेशन से हमें रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ मिल जाएगा. r इज इक्वल टू हाउ मच? mv/bq. v क्या है? यहाँ से कैलकुलेट कीजिए. इज इक्वल टू qvr/m और t टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल विल बी 2πr/v. अब v की वैल्यू यहाँ रख दीजिए t में तो आपको क्या मिलेगा? t इज इक्वल टू 2πm/bq मिलेगा. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन 1 टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है. न्यू इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू qb/2πm. वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज both the quantities t and nu are independent of velocity vector v
and radius of that circular path. R और V से दोनों टर्म्स T और nu इंडिपेंडेंट हैं. This is very important concept which is used in cyclotron. Another important point about magnetic force is that this magnetic force acting on the charged particle is only deflecting one. ये इसको कोई एक्सीलरेशन नहीं देता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसके मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है. दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू.